Now, everybody, you see that today, yesterday I told you that we will do some questions related to the third chapter, election and representation. And you can see some questions on your screen. We will discuss all these questions, and these are very simple. First of all, I think that we should do MCQs because the options are there that you can easily answer. So what are these? These are the very first question is, who can vote in India? The options are there. That 4 options are here. You can give me answer. Yes, Rimjim. Hello. Rimjim, what is the answer? Hello. Ma'am, above 18 years. Very good. Shabash. ठीक है. Now the second question is, process in which people participate directly without representation is called. जिसमें बिना उसके प्रोसेस के आप जो है रिप्रेजेंट हो सकता है, वो कौन सा डेमोक्रेसी होती है? ठीक है, तो इनडायरेक्ट है, स्ट्रेट डायरेक्ट है, प्लेन डेमोक्रेसी, कौन सी है? Yes, what is the answer, Divyanshi? Process in which people participate directly without representation is called. Can you give answer, Divyanshi? Yes, Rimjin. Ma'am, C, direct democracy. Very good. What is the answer? Direct democracy. Because you know that in this, people participate directly. They do not elect representatives, but they take on their decisions. That's why it is called a direct democracy. Next question is, process in which people elect representatives is called. अब this is the opposite of previous question. इसका opposite है कि जिसमें आप representatives को खुद चुनते हैं, है ना, चूज करते हैं, तो वो कौन सा जो है डेमोक्रेसी होगी? यस, शैल वी? Ma'am, indirect democracy. Very good. Indirect. This is correct. Which one is direct democracy? Which one is direct democracy? USA, India, China, village panchayats in India. Yes, Rimjin. Direct democracy किसमें identify this? Which one is direct democracy? Ma'am, A, USA. Direct democracy, it is in USA. No. Yes, ma'am. In Switzerland. Switzerland. Option is not here. No, ma'am, USA. USA. Yeah. USA, no. It is village panchayats in India. Okay, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें ये भी हम कंप्लीटली नहीं होता, डायरेक्ट डेमोक्रेसी विलेज पंचायत में पार्शियली होता है. ठीक है? Okay, ma'am. Which one is indirect democracy? USA, ancient Greece, city states, village panchayats of India. Indirect democracy. अब वापस क्वेश्चन अपोजिट है, थोड़ा सा पहचानो और जवाब दे दो. Ma'am, it's USA. Very good. Correct answer. What does free election mean? Options are there. One which is free in cost,
one in which anybody can participate freely, one which is organized in free time, one where anybody above 18 Indian citizen can participate. One which is organized in free time, one where anybody above 18 years Indian can participate, one in which anybody can participate freely, on which is free in cost. ये पता चल रहा है? Free elections, one where anybody above 18 Indian citizens can participate. What does fair elections mean? क्या मतलब होता है fair elections? In which there is no cheating and looting, in which only fair and wise people participate, in which only fairly everybody participate, where anybody can participate. Yes, shall we? Ma'am, option D, where anybody can participate. क्वेश्चन को दोबारा से समझो. व्हाट डज फेयर इलेक्शन मीन? फ्री एंड फेयर पढ़ाया था ना, इसमें फेयर इलेक्शन किसको कहेंगे? हाँ, ऑप्शन ए. हाँ करेक्ट. जिसमें किसी भी तरह की डर्टी ट्रिक्स यूज नहीं करें जहाँ पर इलेक्शन को विन करने के लिए, वो होता है फेयर इलेक्शन. ठीक है. Yes. First option is correct, in which there is no cheating and looting. Which election system has been adopted? Which election system has been adopted in India? कौन सा election system adopt किया हमने? FPTP, proportional, partially list system, single transferable vote. Which system we adopted in India? कौन सा system adopt किया हमने? Ma'am, option A, FPTP. Okay, correct. First past the post, यानी जो सबसे पहले जिसके वोट ज्यादा हो गए वो विनर हो गया. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड करा? तीनों का आना चाहिए. ऑल नो आंसर. यस, रेज योर हैंड. इंडिया को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं जब इलेक्शन होता है तो? यस, रिमझिम. मैम A 545. 545 नहीं होगा बेटे. एनीबडी? ये तो इस चीज को तो मैं कितनी बार रिपीट किया था जब मैंने लेक्चर दिया था. तो मैम एक्चुअली मैंने क्लास ली नहीं थी, मेरे एग्जाम से 10 के. तो अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी हम और किसी से बात करते हैं. एनीबडी एल्स? यस, शालवी. Ma'am, 543. Yes, correct. Because Option B. 543, correct. 543 option B is correct. Because two persons, they are chosen, not we can say कि उनको इलेक्शन लड़ना होता है, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन. ठीक है. Each constituency elects how many representatives? हर कंस्टिट्यूएंसी से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं? यस, रेज योर हैंड. राशि. यस, राशि. कितने हर कंस्टिट्यूएंसी से कितने हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं? Ma'am, 3. याद करो, 543 है. ठीक है. कंस्टिट्यूएंसी कितनी हो गई? 543. अब हर कंस्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर हम चुनते हैं? अगर 3 चुनने लगे, 4, देखो आप मल्टीप्लाई करो, आप 543 into 4, तो फिर कितने मेंबर हो गए हमारे? और कितना हो गया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से? चलो किसी और से पूछते हैं, कोई बात नहीं. ओके, यू ट्राई, दिस इज गुड.
Anybody else who want to try? Each constituency elects how many representatives? Khushbu, read question number 10. Each constituency elects how many representatives? कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी से? यस खुशबू? Yes, ma'am. Each constituency elects how many representatives? कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी से? Ma'am, 4. या फिर 1. हाँ बताओ। Hello? कितने? हाँ बोलो खुशबू। Ma'am, I think 4. Oh no, 4 is incorrect. So, ma'am, 1. Yes, 1. हमने क्या बोला था जब लेक्चर दिया था, तो मैंने क्या कहा था, पूरी कंट्री को, इंडिया को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में हम डिवाइड करते हैं और हर कंस्टिट्यूएंसी से क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है। वेयर डज पीआर सिस्टम वर्क्स इन इंडिया? कहाँ वर्क करता है पीआर सिस्टम? ऑप्शंस आर हियर। प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएलए। किसके इलेक्शन में पीआर काम करता है? Who will reply? Raise your hand. Anyone? Yes, Rashi. Ma'am, MLAs. एमएलए तो हम खुद चुनते हैं, विधायक होते हैं बेटा, जिसमें हम डायरेक्ट वोट देते हैं। Ma'am, हाँ प्रेसिडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, राज्यसभा मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको हम पीआर के थ्रू हमने जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से और विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ इजराइल? क्या नाम था इजराइल की लेजिस्लेचर का? रेज योर हैंड। अगर लेक्चर अच्छे से सुना था तो पक्का आएगा, और नहीं, और चैप्टर को भी गो थ्रू नहीं हुआ है तब तो नहीं आएगा। बताइए। नेसेट, ड्यूमा, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली। रेज योर हैंड। यस राशि। ma'am, A. ए नेसेट, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट द वेरिएंट ऑफ पीआर सिस्टम। क्वेश्चन को समझना। हमने 2 वेरिएंट्स, पहले मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देती हूँ। हमने 2 वेरिएंट्स पढ़े थे, ठीक है। और उस 2 वेरिएंट में था कि एक तो पूरी कंट्री को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है, सेकंड वेरिएंट था कि मल्टी मेंबर्स जो है, मल्टी मेंबर्स जो है वो होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं। अब हम कह रहे हैं विच इज नॉट द वेरिएंट ऑफ पीआर। जो पीआर का वेरिएंट नहीं है वो क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पीआर विद इन स्टेट, पीआर इन ए कंट्री, पीआर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। पीआर किसमें नहीं है? पीआर वेरिएंट किसमें नहीं है? रेज योर हैंड। यस राशि। Ma'am, in state. वेरी गुड, वेरी गुड। इन स्टेट, स्टेट्स में कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल हमने देख लिया था, कंट्री में देखा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखा, लेकिन स्टेट्स में नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफपीटीपी? अगर हमने अच्छे से समझा एफपीटीपी को तो सबको आंसर आएगा। पहला है इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी,
candidate having highest number of votes wins. It allows representation of all sections. It is a simple election system. It is what is the not characteristics of first past the post system? कौन सा नहीं है? Yes, Ranjan. Ma'am, B, candidates having highest number of votes win. Repeat your answer, please. Ma'am, B. It allows represent the candidates having highest number of votes win. तो बेटा FKTP का तो यही तो फीचर है. That's why it is very simple कि uneducated people भी समझ जाते हैं कि वोट जिसके ज्यादा हैं वो जीत गया है. ये तो आंसर नहीं है बेटे. Yes, shall we? Ma'am, C. C. It allows representation of all sections. Correct answer. Very good. Now the next is what are reserved constituencies? क्या मतलब होता है reserved constituencies का? Area where reserved train tickets get booked. Area where voters vote for particular community. Area where only a particular community vote for candidate belong to a particular community. Area which is conflict prone. What is the answer? Ma'am, B. D. Area where only a particular community vote for candidate. What are reserved? No, answer is not correct. Yes, Dipanshu, want to try? No problem Yes, is ma'am. there if your answer. हाँ बोलो बोलो क्या आंसर हो सकता है? कोई जवाब नहीं आ रहा. Yes, next. Shall we? You want to try once again? Ma'am, Yes, shall option we? C. Area. Option C. what are- चलो देखते हैं. Option C. What are reserved constituencies? B होगा बेटा इसका आंसर. देखो आप समझो इस चीज को. बी कैसे होगा? वापस ऑप्शन देखो. फर्स्ट तो वैसे ही नहीं है. सेकंड देखो कह रहा है एरिया वेयर वोटर्स वोट फॉर पर्टिकुलर, यानी वोटर्स तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे हो गए, लेकिन वो पर्सन कौन होगा जिसको वोट देंगे, क्योंकि वो SC/ST कैटेगरी का होगा, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई ना. तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर को, उस कैंडिडेट को सभी जने वोट करेंगे, तो आंसर बी होगा. सी क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखें. एरिया वेयर ओनली ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट, यानी सिर्फ SC लोग, ये तो फिर वो हो गया सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात होगी अगर हम सी ऑप्शन सही करते हैं. समझ आ रहा है? तो इसलिए सी गलत है, बी इज करेक्ट. एरिया विच इज डेलिमिटेशन कमीशन इज क्या है? विच लिमिट्स द स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, विच ड्रॉज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, विच ड्रॉज बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, which resolves the disputes of boundaries of our country. Yes. You want to try? Raise your hand. Rashi, you want to try? Ma'am, option. Yes, try to Ma'am. give answer. Ma'am, C.
which resolves the see which draws boundaries of function. Correct answer, बिल्कुल सही है, शाबाश. What is the answer? Which draws boundaries of constituency. क्योंकि हमने क्या कहा था, constituencies के जो रिजर्वेशन, जो कम्युनिटी जिस पर्सन को रिजर्व करना है, जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है, तो उसकी पहले बाउंड्री का डिमार्केशन होता है कि ये बाउंड्री है, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन. सेकंड क्या चीज होती है, पॉपुलेशन. जो डिलिमिटेशन जो कमीशन है, सेकंड काम क्या करता है, उनकी पॉपुलेशन को देखता है कि किस प्रपोर्शन में चीज जो है वो रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who appoints the delimitation commission in India? Delimitation commission को अपॉइंट कौन करता है, सबको आंसर आता है. Raise your hand. Please raise your hand. Delimitation commission को कौन अपॉइंट करता है? I told you in my lecture. Yes, Rashi? President. It is correct. जो अगर मल्टी मेंबर भी होंगे तो उनको भी कौन करेगा, इलेक्ट प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which group has been given reservation in constituencies? किन ग्रुप को constituencies में रिजर्वेशन दिया जाता है? Please all raise your hands, everybody you know, क्योंकि पूरा एक टॉपिक हमने इस पे करा है, पूरा टॉपिक डिस्कस किया था. मैम Next, SC राशि. and बिल्कुल ठीक है, SC एंड SC, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो रिजर्वेशन पॉलिसीज है ही इनके लिए. वेरी गुड. डिलिमिटेशन कमीशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद, बताया था. डिलिमिटेशन का काम क्या है, दो ही काम हमने देखे थे. अब ये वर्क किसके साथ करता है, रिजर्व है, किसकी कोलैबोरेशन में वर्क करता है? Shall we? Yes, ma'am. Yes, shall we? आप Ma'am, try करें please. option D. ऑप्शन डी क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर. बिल्कुल ठीक है, Election वेरी गुड. Commission. हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश. द प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इज. अब ये क्वेश्चन जो है, या अगर जिनको मतलब पढ़ा होगा वही बता सकते हैं, वरना नहीं. और वैसे ही आपको बता दो, टाइम टू टाइम हिंदू और जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं हमारे इंडिया में, रिलीजन जो है, उनका परसेंट आता रहता है. तो इसका आंसर कोई ट्राई करना चाहता है? वेरी गुड राशि. मैम 14.5 ए. 13, हाँ क्या बताया आपने, 14.5? Yes, ma'am. आई थिंक इट्स 13.5. दोबारा इसको देख लूंगी, मेरे हिसाब से 13.5 है. ठीक है. प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स एमपीज इन लोकसभा. इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करा रही हूँ आपको, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं. दीपांशु को पता है आंसर, तो बताएं दीपांशु. यस, व्हाट इज द आंसर? यस दीपांशु, डू यू नो? नो मैम. ओके, वी विल डिस्कस दिस बिकॉज इट इज नॉट इन, जो जितना हमने पढ़ा है ना उसमें नहीं आया, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं अभी करूंगी, पढ़ने पर ही बताएंगे. ठीक है. यस राशि. मैम लेस देन 8%. नहीं, रॉन्ग है. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, जो भी पढ़ाऊंगी तभी समझाऊंगी क्यों है, कैसे है, ये भी रीजन के साथ. चलिए, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको मालूम है.
एवरीबडी प्लीज रेज योर रिमझिम, सबको मालूम है, शालवी सबको पता है। Ma'am, Yes, it's Shalvi. anybody above the age of 18 have the right to vote. Excellent. Correct. Anybody have the above the age of 18 have the right to vote. Correct. When was the amendment to change? ये बताएं. When was the amendment to change of voting from 21 to 18 passed? Yes, Rashi. Ma'am, 1988 शायद. 1988. Yes, ma'am. ऑप्शन बताओ. ऑप्शन नहीं, सी नहीं है बेटे. अभी बस देखते हैं ऑप्शन. नहीं, सी नहीं है. Yes, Dipanshu. When was the amendment to change the age मैम of voting? 1989. हाँ, बिल्कुल ठीक है. 1989. Correct. 8. Very good. What is the age requirement for fighting Lok Sabha election? Rim-Jim. Yes, Rim-Jim. And be 25. Correct. Very good. Which article provides for election commission in our constitution? Which article provides for election commission in our constitution? चैप्टर अगर देखा होगा तो ये हाँ बताएं. राशि बताएं. What is the Ma'am, answer? Article Article 324, A option. A option. Correct. Article 324. Correct. Good. Election Commission does not do following. क्या नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन? सुप्रिटेंडेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, चूज कैंडिडेट. यस राशि. Ma'am, choose candidate. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था उसमें यही था कि इलेक्शन एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर सकता है. तो ये जो ऊपर वाले तीनों काम है, सुप्रिटेंडेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ये सब जो है इलेक्शन कमीशन परफॉर्म करता है, लेकिन चूज कैंडिडेट का काम नहीं है. कैंडिडेट चूज करने का काम पार्टी का है. एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या एज? यस शालवी. Ma'am, option B, 65 years. हाँ, 65. करेक्ट. वेरी गुड. Who appoints election commissioner? सबको आना चाहिए. अभी हमने क्वेश्चन किया था. इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, अदर मेंबर्स, सबको आना चाहिए. प्लीज रेज योर हैंड. यस शालवी. Ma'am, it's president. It's president. हाँ, प्रेसिडेंट. करेक्ट है. गुड. हाउ मेंबर बॉडी इज द इलेक्शन कमीशन? अब जो है
वो कितने मेंबर्स बॉडी है, कितने मेंबर इलेक्शन कमीशन में? यस राशि? मैम शायद 3। हाँ 3 ही है। देखो मैं बता दूं आपको क्यों है 3, क्योंकि आफ्टर 1993 परमानेंट मल्टी मेंबर सिस्टम हो गया है, ठीक है। अब 3 ही है, 1 and 2 more। 1 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अनदर मेंबर। बट when was election commission permanently made मल्टी मेंबर बॉडी? अभी मैंने आंसर ही बोल दिया है, अब आप ही बता दूंगा। मल्टी मेंबर बॉडी परमानेंटली कब बन गया है, अभी बता के गए। रेज योर हैंड। कौन सा ईयर बताया मैंने अभी भी? यस रंजन? मैम डी 1993। हाँ नहीं, डी 1993। अभी अभी क्वेश्चन पूछा, अभी आंसर था और उसके बाद ऑप्शन आ गया अभी पास। गुड, वेरी गुड। When was election commission first made multi member body? पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी कब बना था? यस रंजन? मैम इट्स बाय मिस्टेक, आई डोंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम। यस राशि? मैम When was 91। 19? हाँ रिमेम्बर। देखो क्या हुआ था, याद रखो मैंने क्या पढ़ाया था कि जब 1989 का जब स्टार्टिंग टाइम था तो वोटिंग एज क्या थी, 21। चीजों को कोरिलेट करके पढ़ो, भूलो मत। फिर उसके बाद एज रिड्यूस हो गई, 18 हो गई। अब मेंबर्स जो है वो इंक्रीज हो गए। वो मेंबर्स इंक्रीज क्यों हुए? क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया। तो वो कौन सी ईयर में हुआ था? 1989। ठीक है। Now the next question is, some one-line questions are also I have. You can try. Which election system has been adopted in India? जो हमने एमसीक्यूज में क्वेश्चन किए हैं ना, वैसे ही क्वेश्चंस आपको वन लाइन में मिलेंगे। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे लगा स्टार्ट हो गया। चलिए, हु कैन कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन? रेज योर हैंड। All can contest. All the citizens of India, they can contest elections, but two conditions are here: the age of 25 years and one more thing कि उस पे कोई ट्रायल नहीं चल रहा हो। ओके। On what principles universal adult franchise stand? कौन से प्रिंसिपल्स पे है? इक्वालिटी, कि भाई सबको जो है वोट करने का, पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 18 ऑल हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट। इट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? वी ऑलरेडी रन इन आवर एमसीक्यूज। अभी बोला वही आंसर है। इन कोलैबोरेशन ऑफ विच अथॉरिटी डज डिलिमिटेशन कमीशन वर्क? किसके उससे करता है? अब तो मुझे आंसर आपको देना ही होगा। रेज योर हैंड। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आया है। किसके कोलैबोरेशन के साथ डिलिमिटेशन कमीशन वर्क करता है? मैम इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। कमीशन। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। तो आज हमने ना बहुत सारे एमसीक्यूज किए, 30 अबव क्वेश्चंस कर लिए थे। टाइम खत्म होने को आया है इसलिए मैं खत्म कर रही हूँ इस चीज को। लेकिन अभी भी बहुत सारे वन लाइन क्वेश्चंस हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, क्वेश्चन सेशन। And one more thing, I request all the students who are the
we can say that students of this stream and particularly they have taken the subject but they are not attending the class. क्लास नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये क्लासेस आपके लिए ही है. इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, पूरा लेक्चर तैयार करना, फिर आपको एक एक चीज को क्लियर समझाना, नॉट ओनली ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्स्ट्रा भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है. तो आप अपने स्टूडेंट्स जो भी अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं आप उनको कहें क्लास अटेंड करें. और क्योंकि क्वेश्चन भी होता है, ऐसा नहीं कि हम मोनोटोनस एक लेसन ही कराते जा रहे हैं. आप इस चीज का बेनिफिट उठाएं. एंड देन हैव अ गुड डे.